way you feel like. And no. Now move the head as you feel like, as if you're saying a no. Faster. Fast, fast, fast. In different directions. Move your neck in any direction you feel like. You can rotate, look down, look up, but fast. Fast movement. And pause. Keep your eyes closed. अपनी आँखों को बंद रखेंगे. And feel the vibration in your head. And gently open your eyes. And now, when I say shoulders, you have to shake your shoulders as fast as you can. Okay? On a count of 3, 2, 1, and begin. Shoulders, shake it. All of you together. Shake, shake, shake. Your left shoulder, your right shoulder. You can rotate, but fast. As fast as you can. Very nice. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब. You're doing it so well. Move it. With a smile on your faces. Amazing. Just 5 more seconds. Move, move, move. Shake it, shake it. Shake your shoulders. Faster, faster. Very nice. Faster. And pause. Keep your eyes closed. Feel the movement, the vibration in your shoulders. And gently open your eyes. And now I want you all to please stand up from your places. And this time we have to move our hands. Be careful of each other. Be fully aware. You come a little forward or at the back, or you can turn sideways. And this time what you have to move is your hands. On a count of 3, 2, 1, begin. Very nice. Keep moving. Faster. You can take your hands up. Put the hands up. And move. Fast, fast, fast. Take your hands in front. And shake. Shake, shake, shake. Bend down. And shake. Move your hands. Fast, 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 fast. Fast, fast, fast. Keep moving. Keep moving. Do not stop. Keep moving. And up. Shake, 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 shake. Very nice. And pause. Close your eyes. Feel the vibrations in your hands, in your palms. This ticklish sensation is oxygenation of cells. And gently open your eyes. And now it's time for the legs. So what you have to do is you have to march on your legs. Okay? Faster. Let's begin. 3, 2, 1, and go. Stamp your leg. Stamp it. It's one of the best exercises to release your stress. Stamp, stamp, stamp. We're all remembering our school days when we used to do march past. Keep stamping. Move your legs faster. And with your legs, now move your whole body. Your whole body, your hands, your neck, shoulders, whatever you feel like. You're as free to move whatever you feel like. I'm loving the smile on your faces. Keep smiling. Move faster. Just 5 more seconds. Today is the day to release. Empty yourself. Empty your whole body. Because we are ready to get the divine energy. Faster. 10, 9, 8, 7. Shake your hands. 5, 4. Just 3 more seconds. Shake, 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 shake. Very good. I love the hands at the back. Very nice. 2. And just 1 more second. Keep shaking. And pause. Please sit down in your places. Keep your eyes closed. अपनी आँखों को बंद रखेंगे.
Feel the sensation in your entire body. Feel the change in your breath. Feel the heart, which is beating for you 24/7. And very gently open your eyes. So the activity which we did right now, I would like to ask you कि आप भैया जब ये एक्टिविटी कर रहे थे तो जब आपने अपने मूवमेंट की बॉडी की तो आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसेशन महसूस हुआ? Where did you feel the sensation in your body? बॉडी में माइंड, गुरु जी के दर्शन करते ही ऐसे मन को वैसे ही शांति मिल गई और आपने करके ना खाली जैसे खाली कर दिया और खुला कर दिया और खिला दिया चेहरे को. थैंक यू सो मच. Thank you. Let's have a round of applause for him. Amazing. What's your name? Budh Prakash ji. Let's have a round of applause. Thank you so much. So जैसे भैया ने कहा that we have empty our body. Yes. You know, today the movement of our body is just restricted to our hands, either on our laptops or on our phone. That's the only thing which is moving. But it is said that when the body is active, the mind becomes calm. That's the best way to calm your mind. हम यहाँ बैठे रहते हैं और पूरी हमारा जो मन है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाता है. तो कैसे हम अपने शरीर को एक्टिव करें और अपने मन को शांत करें? Play any music you feel like, and this is the best way to cure your insomnia. Before you go to bed, play any music for say 20 minutes, 15 to 20 minutes, and just move your body the way you feel like. And that's the best way you'll get the best sleep and one of the best meditations which you can practice. So आपने जो आज ये activity की of action and pause, I heard a very beautiful story in this. There was a woodcutter, and a woodcutter used to cut woods every day. And he was the highest paid woodcutter in the whole company. And new people started coming in the company, and they said that मैं इनसे अच्छा इनसे इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा. But still they couldn't compete that single person. And then one person came and said that I can challenge him, and today I will show कि मैं इससे best और ज़्यादा products बना के दिखाऊंगा, ज़्यादा wood cut करके दिखाऊंगा. Day and night, without sleep, without food, 24/7 he worked. But even after that, he couldn't compete that man. जो आदमी था who was the highest paid. He successfully achieved the success in this game. He was the winner. And then he went to that person and said that so many people are working in this company, but you are the one who is always at the top. What is the reason? I saw you, I was observing you, that you even took a lunch break and you even took a nap for some time, and still you could cut more wood than me. How come? So he said that when I take a lunch break, with my lunch, I give a pause to my saw. जिस saw से मैं पेड़ को काटता हूँ, उसको मैं वहां जाके शार्प करता हूँ. और जब वो और शार्प हो जाती है और मैं जब फिर अपने काम पे जाता हूँ, वुड कट करने जाता हूँ, तो मैं और अच्छे से ज्यादा काम कर पाता हूँ. So that's when he mentioned that जीवन में pause आना बहुत जरूरी है. So whenever we talk to each other, we always say that I'm very busy, right? और हम सब इतने busy हैं अपने अपने life में, but today is the moment to learn that pause makes us realize that whatever work we are doing, it puts in so much of presence, so much of awareness within us that हम और अच्छे से और ज़्यादा काम कर सकते हैं. So I think with this story, we can all apply in our life. In our busy schedules, we will always take a pause. 1 minute, 1 घंटे में सिर्फ 1 minute आप pause लेना. Just close your eyes, away from your computers, away from your work, and just breathe in and breathe out for few minutes and get back to work. You'll be able to work much more than your capacity. So will you do that? Yes. I couldn't hear that. Yes or no? Yes. Wonderful.
And now let's move on to our next technique, which is we say that body, mind, and soul. So हमने अपने body को तो active कर लिया, and now it's time to calm your mind. So I just want to ask that one of the ways of calming our mind is breathing, and we all breathe here, right? Every day, 24/7. So I want to ask all of you कि जब आप सांस लेते हैं, you're not supposed to say anything. I just want your hands raised up, okay? So जब आप सांस लेते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जिनका पेट अंदर जाता है? Please raise your hands. Oh, wonderful. Please bring it down. Okay. And now जब आप सांस लेते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनका पेट बाहर आता है? Okay, I could still see some people are doing this. कि सांस तो हम सब लेते हैं, पता नहीं अंदर जाता है बाहर आता है. Right? So come, let us add some awareness to it. Keep your right hand on your navel and your left hand on your heart. And gently close your eyes. Breathe in and breathe out. And gently open your eyes, remove your hands. Okay, so we added a little more awareness to our breathing. So now I want to know that आप में से कितने लोग हैं जब आप सांस लेते हैं? I just want your hands up, no talking. So आप में से कितने लोग हैं जो सांस लेते हैं तो आपका पेट अंदर जाता है? Oh wow, the awareness has increased. There are more hands which I can see. Good. और आप में से कितने लोग हैं जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है? Okay, still I could see that some people are still doubtful. Yes? Do you all know कि क्या होता है actually हमारे body में? Do you want to know? Yes or no? Yes. So I want हम एक दिन में जब हम सांस लेते हैं, it is almost 24,638 times हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. तो आइए, we will be doing one breathing practice, just normal breathing practice, and then we'll move on for the most important thing, what we are waiting for, to listen to the divine, to apply that lovely teachings, that in unconditional blessings in our life. So I want you to put your hands in front of you in form of a fist. अब अपने हाथों को एक मुट्ठी बनाएंगे. So all the ladies, put your left thumb up, and all the gents your right thumb, and keep your fist in front of you. Elbows absolutely straight. Uncross your leg. अब अपने legs को uncross करेंगे. Uncross, cross नहीं करेंगे. Back straight. And we will, anybody suffering from any heart problem, high BP, any kind of operations or ulcers in the stomach, please take it as slow as you can according to your body capacity. And everybody else, how you have to do, please look at me first and then we'll do it together. So the movement of your hand is perfect. And now we'll add breathing to it. So breathing is when you take up, you inhale. When you bring it down, you exhale. So just look at me first and then we'll do it together. Perfect. Thank you. So now just bring your hands in front, make a fist. Keep your eyes open so that you can look in front, and then let's do it together. Inhale up, exhale down. Okay, let's begin. And stop. Keep your eyes closed. Release your hands. Feel the sensation of your breath.
and gently open your eyes. And now let us practice one more time. Make a fist in front of you. Inhale up, exhale down. If you've understood the practice, please close your eyes and practice. Otherwise, you can keep your eyes open and practice together. And relax. Keep your eyes closed. Gently open your eyes. The mudra which you made is known as Venus lock. When you make this keeps you away from distractions. And I think today the mobile is the biggest distraction. As soon as you're at work, you get a notification, you get back to your mobile, and then minutes are gone, right? But if you practice this mudra every day with a breathing practice, this will help you to not distract yourself. It will help you balance your glands in the body. And when you do this breathing practice of inhaling, exhaling as fast as we did right now, this will help you to release yourself from any kind of sinus problems. So I hope with this benefits, you will practice that every day, because this gives maximum oxygen in your brain, which helps you to do not go in any kind of stress, because stress can then lead to depression. So practice this breathing technique every day, make yourself fit and happy. So thank you so much for lovely participation. Let's have a great round of applause for your own self that you have taken this step for yourself. Thank you so much. And now I would give the mic to Rakesh uncle. Shilpa, thank you so much. Please give a round of applause for Shilpa. Before I invite our host for today, Ashima ji, I would like to, on behalf of Siddheshwar Parivar, as well as all of you, thank Sunil ji and Ashima for opening their heart and the doors of their home for having us. So Ashima ji, please come and welcome Gurudev and invite him to say a few words. राकेश जी, ये गुरुजी का घर पहले है, फिर वहाँ- I know गुरु जी का घर पहले, लेकिन फॉर्मेलिटी के हिसाब से हमारा फर्ज है आपको धन्यवाद दिया जाए। घर तो गुरु, पूरी दुनिया ही गुरु जी की, मेरे लिए तो, पर आपका घर तो ही खाली। सुनील जी, आप वाकई ज्ञानी हो गए। And Sunil, please come and fix this. Yeah, Jai Gurudev, everyone, and I welcome all of you. And I have no words. मुझे कुछ कह, I'm in a bliss. मेरे गुरुदेव यहाँ आए हैं, मेरे नहीं, हम सबके गुरुदेव। गुरुदेव के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि मैंने जब उनके पहले दर्शन किए, I felt the love of thousands of mothers. एक माँ में कितना प्यार होता है, हजारों माँ में कितना होगा, right? So मुझे जब से गुरुदेव मिले तो I could see lot of changes in myself. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी. We all welcome our Gurudev, Brahm Rishi Gurvanand ji, and I welcome all of you, and I want all of you to take something from Guruji today. His teaching, his vibration, his energy. He has a lot. It's all up to you what you want to take. So it's open to you. Enjoy. Take his words of wisdom. Take his energy. Take his vibration, and make your life happy. Thank you.
थोड़ा ऊपर कर। सब लोग 2 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और मन को शांत करेंगे। ओम एक बार 9 मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम नमो हरि शिवाय। ओम नमो eso एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिव्यांत की अरिताओं में प्रदत्त स्वनत सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिकालब की छटा सुशोभित अध्यात्म की विराट विराटिका के नित्य राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक आदि शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी के देश भारतवर्ष से आकर बसे हुए इस अमेरिका में और अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज मैं श्री सुनील जी और आसिमा शाह के गृह स्थान पर इस महल में आप सबका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके पहले जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखी, बड़ी सुंदर ढंग से रखे। मेरा दिल कर रहा था उनको सुनता रहूं, आज बोलने का दिल नहीं कर रहा। भार्गव जी ने भी बहुत सुंदर बातें रखी और भी लोगों ने भी बड़ी सुंदर बातें रखी, शिल्पा ने रखी। उनके लिए एक बार हम ताली बजाएं, उनको धन्यवाद दें। Let life be beautiful because of the world. Let life be beautiful because of the world. Let life be beautiful in spite of the world. In spite of the world. Let life be beautiful because of the world. यह संसार के कारण हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए, कारण कि हमारे जीवन से, आपसे, हमसे ही ये संसार बना है। तो उस अगर आप अच्छे होंगे, आप सुंदर होंगे तो संसार भी सुंदर होगा। संसार के कारण हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। अगर संसार कारण ना हो तब भी हमारा जीवन सुंदर होना चाहिए। कारण न्यूटन कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके जो भी कर्म होंगे, जो भी आपके वर्क होंगे, जो भी एक्शन होंगे, रिएक्शन उसी तरह से आएगा। हमने सुना है कि एक बार सम्राट अकबर
और उसकी पत्नी जोधाबाई और बीरबल तीनों नदी के किनारे टहलने के लिए निकले। सबसे आगे जोधाबाई थी, बीच में बीरबल था और सबसे अंत में सम्राट अकबर था। तीनों टहल रहे थे। सम्राट अकबर के मन में शरारत सूझी, कहा कि ये रानी के सामने अपने आप को बहुत विद्वान दिखाता है, आज मैं बीरबल का उपाय करता हूँ। आगे चलते हुए बीरबल के कमर में चिकौटी काट ली सम्राट अकबर ने। अपने राजस्थान में कहते हैं कि चूटिया भरियो, चूटिया भर दी, चिकौटी काटी, थोड़ा जोर से काटा। बीरबल को बड़ा दर्द हुआ, गुस्सा भी आया। पीछे घूम कर देखा तो देखा तो सम्राट है। अब सम्राट अकबर को क्या कर सकता है, कुछ नहीं, चुपचाप रह गया। लेकिन बीरबल भी बड़ा चालाक था। थोड़े देर के बाद सेम थिंग ही डिड विथ क्वीन, वो आगे चलते हुए रानी के कमर में चिकौटी काट दी बीरबल ने। अब रानी को कैसे बर्दाश्त हो, तो रानी है। गुस्सा आया और पीछे घूमी और कही कि बीरबल ये क्या हिमाकत, बोली हिम्मत कैसे हुई, और एक चटा जड़ दिया बीरबल के गाल में। बीरबल भी आव न देखा था, उसी जोश में पीछे घुमा और एक चटा जड़ दिया सम्राट अकबर के गाल में। अब रानी का नरम हाथ, बीरबल का वीर का गाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बीरबल का वीर का हाथ, राजा का नरम गाल, फर्क पड़ गया। राजा के आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जब थोड़ी देर के बाद राजा ठीक हुआ तो बीरबल को बोला, बीरबल तुमने मुझे चाटा मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो बीरबल ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, गुस्ताखी माफ जिलेलाही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया। आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका, मैं तो पोस्टमैन हूँ, मैं पोस्टमैन हूँ। आपने चिट्ठी दिया, मैंने रानी माँ को पहुंचा दिया, रानी माँ ने जवाब दिया, मैंने आपको लौटा दिया। अगर मैं जवाब नहीं पहुंचाता तो मैं अच्छा पोस्टमैन नहीं होता, रानी माँ मुझे निकाल देती। तो इसलिए हर पत्र के जवाब आता है, काटी थी चिकौटी चाटा बनकर लौटा, काटी थी चिकौटी और वो चाटा बनकर लौटा। तो तेरे हर कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है इस संसार में। इस वायुमंडल के किसी न किसी परत में आप जो बोलते हो वो टेप हो रहा है, आप जो करते हो वह वहां हिसाब रखा जा रहा है। आप जो भी करो, छुप के करो या बाहर करो, हर चीजों का हिसाब यहाँ रखा जा रहा है। और उसी तरह प्रतिक्रिया होगी जैसे आपने क्रिया किया है। तो अपने जीवन में एक चीज पालन करना, हमेशा एक चीज पालन करना कि कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन को पवित्र रखना, जीवन को प्योर रखना, जीवन को सुंदर रखना। और तुम्हारा मन तब सुंदर होगा जब तुम अकेले में हो, अगर एकांत में हो और उसके बाद भी तेरा मन पवित्र है तो समझना तुम पवित्र हो गए। जय गुरुदेव। हम 10 आदमी के साथ, 20 आदमी के साथ और लोगों के साथ बैठकर पवित्रता की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन ये पवित्र तब होगा जब आप अकेले में भी हो और वहां भी आपकी सोच पवित्र है। और जानते हो, मैं साधु उसी को कहता हूं कि जिसके 24 घंटे की विचार सोच को खुले दीवार पर लिखा जा सके, कुछ भी छुपाने योग्य नहीं है, समझ लेना तुम साधु हो गए, समझ लेना तुम साधु हो गए। और अगर एक भी चीज छुपाने योग्य हो तेरे अंदर तो समझना अभी बाकी है। तो कोई हो 24 घंटे के विचार में एक भी विचार अगर छुपाने योग्य नहीं है तो समझना हम साधु हो गए। तो मेरे बंधुओं, अपने आप को प्योर करना, रोज प्योर करना। कारण कि बहुत बार तुम्हें कष्ट भी होगा, बहुत बार तेरे जीवन में तकलीफें भी आएगी, बहुत बार तेरा जीवन डिस्टर्ब भी होगा। हमने सुना है कि एक लेडीज सिल्वर स्मिथ के पास गई जो चांदीहार था, चांदी का मूर्ति बनाता था, सामान बनाता था। गई तो देखी वो जो चांदी वाला जो था वो चांदी को आग में तपाता था और हथौड़े से पीटता था और फिर उस चांदी को देखता था, फिर आग में तपाता था, फिर हथौड़े से पीटता था, फिर चांदी को देखता था, फिर आग में गर्म करता था, फिर उसको हथौड़े से मारता था, पीटता था, फिर उसको ऐसे ऐसे देखता था। तो उस औरत ने कहा कि एच सिल्वर स्मिथ, ये चांदी वाले भाई, तुम इस चांदी में क्या देख रहे हो?
ऐसे कैसे देख रहे हो? मैंने क्या देख क्यों रहे हो? आग में तपाते हो, गर्म करते हो, हथौड़े से मारते हो, हैमरिंग करते हो, और फिर तुम देखते हो, देख देख क्या रहे हो? तो उसने कहा, मैं चांदी को नहीं देख रहा हूं, मैं इस चांदी में अपनी तस्वीर देख रहा हूं। अगर ये चांदी जब तक अशुद्ध होगी तब तक मेरी पूरी तस्वीर इसमें नहीं दिखेगी। जब ये चांदी प्योर हो जाएगा तो मेरी पूरी तस्वीर इसमें दिखने लगेगा, और जब मेरी पूरी तस्वीर दिखने लगेगी तो एक व्यक्ति ने मुझे दिया है भोले बाबा शिव की मूर्ति बनाने के लिए, फिर मैं इसको पीटूंगा और इसको गर्म नहीं करूंगा, एक बार मूर्ति बना दूंगा और फिर इसकी पूजा होने लगेगी, फिर इसकी पूजा होने लगेगी। तो औरत ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, घुटने पर बैठ गई और कही, हे परमात्मा, तुम भी समय रूपी हथौड़े, तुम भी समय रूपी हथौड़े और वक्त और स्थिति रूपी आग में जलाते हो और समय रूपी हथौड़े से पीटते हो, इसलिए कि तुम भी अपना तस्वीर हम में देखना चाहते हो। परमात्मा इसलिए तुम्हें कष्ट देता है कि परमात्मा भी अपनी तस्वीर तुम में देखना चाहता है, और जब तक तुम में मिलावट है उसकी पूरी तस्वीर नहीं दिखती है। तेरे हर मिलावट को जब दूर कर देता है, प्योर कर देता है, जब तुम प्योर हो जाते हो तो परमात्मा अपनी तस्वीर तुम में देख लेता है, और जब एक बार परमात्मा अपनी तस्वीर तुम में देख लिया तो तुम पूजनीय हो गए। फिर तक तुम पूजनीय हो गए। ईश्वर भी, वो वाहे गुरु भी, वो परमात्मा भी अपनी तस्वीर तुम में देखना चाहता है, कारण कि तुम पुत्र किसके हो? तुम पुत्र भी उस परमात्मा के हो, उस ईश्वर के हो जिसने तुम्हें भेजा है। अब वो ईश्वर किसी रूप में आ सकता है। ईश्वर का अर्थ यही नहीं है कि तुम जिस रूप में सोचते हो उसी रूप में आ जाए, नहीं, वो किसी रूप में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। मेरे बंधुओं, पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अर्जुन के रथ चला रहे हैं कृष्ण, लोग कह रहे हैं कि सारथी है, अर्जुन भी सोच रहा है कि सारथी है, और जब गीता सुनाते हैं कृष्ण उसको अपना दिव्य रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तब अर्जुन कहता है, वो मेरा कुचवान ही भगवान है, मेरा कुचवान ही भगवान है, ये रथ चलाने वाला जो ड्राइवर है मेरा, यही भगवान है। तो मेरे बंधु, जिस दिन तुमको भगवान को देखने की दृष्टि मिल गई, उस दिन से तुम भगवान को खोजोगे नहीं, तुम जहां रहोगे वहीं परमात्मा आ जाएगा, क्या बात, वही भगवान आ जाएगा। अपनी जीवन में कभी भी कोई ईर्ष्या, कोई घमंड, कोई क्रोध मत लाना। बहुत लोगों की आदत है, मैं देखता हूं कि वो बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन तब भी उनको यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां, उसमें चुकते नहीं, परेशान कर देते हैं परिवार को। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर तुम 60 साल से ऊपर हो गए हो तो ये निर्माण का जीवन 60 साल से पहले, अब तो जीवन को ऐसे जियो जो साधु का जीवन, संत का जीवन, इसलिए उसको चौथापन कहते हैं हम, उस संत का जीवन होता है। तो मेरे बंधुओं, धीरे धीरे तुम लोग भी अपने जीवन को इतना प्योर करना कि परमात्मा भी अपनी तस्वीर तुम में देखने लगे, परमात्मा भी तुम में अपने आप को देखने लगे, कारण कि उसी से आए हो और उसी के जैसे हो, तो परमात्मा अपनी तस्वीर तुम में देखना चाहता है। हम ईर्ष्या, एक बार की बात है कि एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा, दोनों में अच्छी मित्रता थी। अंधा जो था वो गाया करता था, लंगड़ा बजाया करता था, म्यूजिक बजाता था। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाता था, अंधा चला करता था और लंगड़ा रास्ता बताया करता था। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ी सुंदर दोस्ती थी, पार्टनरशिप में काम चल रहे थे। दोनों एक दूसरे का, अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, और दोनों गाना गाते और म्यूजिक बजाते, भिक्षा लेते, और उससे उनका जीवन सुंदर चल रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी लंगड़ा ज्यादा पैसे पर कब्जा कर लेता था, तो कभी कभी अंधा ज्यादा पैसा ले लेता था। बहुत बार पार्टनरशिप में होता है, जब पार्टनर बेईमान हो जाए तो हमें परेशान करते रहता है, तो दोनों में ही होता था। एक दिन की स्थिति ऐसी हुई कि दोनों में झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हुआ कि दोनों से बोल चाल बंद हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। 3 दिन हो गया, अंधे को अंधा चल देख नहीं सकता,
लंगड़ा चल नहीं सकता, एक के बिना एक दूसरे का कोई काम नहीं चलता। अब करे तो क्या करे, 3 दिन खाए बगैर हो गया, दोनों को भोजन नहीं मिला। भगवान जब ये देखा तो भगवान को बड़ी दया आई और भगवान सोचे कि ये दोनों 3 दिन से बिना खाए हुए बैठे हैं, कुछ भी खाए पिए नहीं, मैं चलता हूँ और दोनों को भोजन करवा देता हूँ। भगवान के दिल में दया आई, करुणा आया, भगवान प्रकट हुए और सबसे पहले लंगड़े के पास गए। सोचे कि लंगड़ा तो देख तो सकता है, मुझे पहचान तो लेगा, अंधा बहुत नहीं देखेगा लेकिन लंगड़ा तो पहचान लेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ भी मांग लो, तुम 3 दिन से भूखे बैठे हो, तुम जो चीज मांग लो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, क्या मांगना चाहते हो। तो उस लंगड़े ने कहा क्या गारंटी है कि यह भगवान है। तो भगवान ने कहा भगवान का कोई परिचय पत्र तो होता नहीं, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड तो होता नहीं। तो बोला कि भगवान ने कहा ठीक है तुम मांग लिया मत मांग। तो लंगड़े ने कहा ठीक है, देना ही है तो एक काम कीजिए, वो जो बगल में अंधा बैठा है ना उसको भी लंगड़ा बना दीजिए। वो जो बगल में अंधा बैठा है उसको भी लंगड़ा बना दीजिए। भगवान को आश्चर्य हुआ कि वाह स्थिति और बदतर हो गई। अब उन्होंने कहा कि मन में सोचा कि ये मूर्ख है कि कितना गलत चीज मांग लिया, लेकिन भगवान वादा कर दिए थे तो देना पड़ा। अब वो अंधे के पास आए और उन्होंने कहा कि लंगड़े को मांगने का होश नहीं है, वो क्या मांग रहा है उसको पता नहीं है, तुम तो होशवान हो, तुम गाना गाते हो, तुम कलाकार हो, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि तपाक से बोला कि मुझे कोई ज्यादा नहीं चाहिए, एक ही चाहिए कि मेरे बगल में जो लंगड़ा बैसा है उसका भी दोनों आंखें फोड़ दे, उसको भी अंधा बना दे। मेरे बंधुओं स्थिति और बदतर हो गई, अंधा लंगड़ा हो गया और लंगड़ा अंधा हो गया। पहले देख नहीं सकते थे, चल सकते थे, पहले एक देख सकता था और चल नहीं सकता था, अब स्थिति हुई कि न चल सकते थे न देख सकते थे। संसार बदतर होता गया। इसी तरह मेरे बंधुओं जब हमारे अंदर ईर्ष्या होता है तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा विश्व की स्थिति और बदतर होती जाती है। कारण कि यह संसार आपके द्वारा बना है, आप उसके कारण हो बनने का। हमने सुना है, एक चीज बताओ, इस धरती की उत्पत्ति कहां से हुई, आप बताएं। Where from that earth has come? अंतरिक्ष, हर चीज अंतरिक्ष से आया, लेकिन भूमि अंतिम समय कहां से निकला, कहां से भूमि बना, धरती बना निकला। गुड, वाटर से, पानी से। आग का गोला टूटा था, वैक्यूम क्रिएट हुआ, आग का गोला टूटा और वो पानी में गया, पानी से धीरे धीरे ठंडा होते होते लाखों बरस लगे, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर लगे और वो ठंडा होकर के धरती बनकर बाहर निकला। इसीलिए इस धरती के चारों तरफ पानी है। तो धरती की उत्पत्ति पानी से हुई। पानी की उत्पत्ति कहां से हुई? पहले वैज्ञानिक कहते थे कि हवा से H2O, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग मिला करके पानी बनता है। हमारा धर्म कहता था कि नहीं, अग्नि से। अब वैज्ञानिक भी मान गए कि बात सही है, अग्नि से ही हुआ है पानी की उत्पत्ति। तो धरती की उत्पत्ति पानी से और पानी की उत्पत्ति अग्नि से। अग्नि कहां से आया? वायु से, हवा से। अगर कहीं भी हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो वहां आग भी नहीं रहेगा, आग नहीं जलाया जा सकता है। अगर आप चंद्रमा पर जाकर आग जलाना चाहें तो आप नहीं जला सकते हैं। तो उसकी उत्पत्ति, अग्नि की उत्पत्ति हवा से। हवा की उत्पत्ति कहां से हुई? आकाश से। अगर आकाश को बंद कर दिया जाए तो हवा उत्पन्न नहीं होगा, हवा नहीं चलेगा, तो आकाश से। अब एक प्रश्न आता है कि आकाश की उत्पत्ति कहां से हुई? अभी तक कोई विज्ञान, कोई भी धर्म इसको खोज नहीं पाया है
इसे अनंत कहा है, कहा कि परमात्मा से हुई। लेकिन आज तक कोई खोज नहीं हुआ कि आकाश कहाँ से आया। तुम जितने ऊपर जाओगे, तुम जितने फ्लाई करोगे, जितने ऊपर जाओगे आकाश उतना ही ऊपर दिखने लगेगा, और बहुत ऊपर जाओगे तो लगेगा बादल और आकाश नीचे है, दिखने लगेगा। कोई भी आकाश छू नहीं पाया आज तक इस संसार में। लेकिन हमारा विचार है, हमारी सोच है कि आकाश है। तो हमारे सोच है कि आकाश है, हमारी विचार है कि आकाश है। आकाश कहाँ से आया? हमारे सोच से। हमारी सोच है कि आकाश है, तो हमारे सोच से आकाश आया, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये संसार की शुरुआत कहाँ से हुई? सोच से। तो अगर इस संसार को बदलना है तो हमें अपने सोच को बदलना होगा, हमें अपने सोच को बदलना होगा, हमें अपने विचार को बदलना होगा। एक बार तुम्हारी सोच बदली, विचार बदले, ये संसार बदल जाएगा। हमने सुना है कि एक कुम्हार था, रोज कुम्हार जो है चिलम बनाया करता था, और चिलम बना करके बेचा करता था। एक दिन वो चिलम बना रहा था। चिलम समझते हो ना आप लोग? साधुओं का बिगड़ा हुआ रूप, पहले उसका सेवन किया करता था, पीता था। चिलम बना रहा था। बनाते बनाते उसके मन में विचार आए, सोच आया कि रोज चिलम बनाता हूँ, ये खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस चिलम के मट्टी को घड़ा बना देता हूँ। और उसने क्या किया कि उस चिलम के मट्टी को घड़ा बना दिया। घड़ा बना दिया। कोई धार्मिक व्यक्ति उस घड़े को देखा और खरीद लिया होगा। कोई हमारे आसिमा या सुनील सा जैसा आदमी उसको खरीद लिया होगा, घड़े को खरीद लिया और एक मंदिर में रख दिया। अब जितने लोग दर्शन करने जाते थे, सब लोग उस ठंडे घड़े से, उस घड़े से ठंडे पानी को सेवन करते थे, पिया करते थे। एक दिन कुम्हार दर्शन के लिए गया अपने मित्र के साथ, तो देखा कि उस घड़े के आसपास बहुत लोग खड़े हैं। बड़ा घड़ा बनाया था, सब लोग पानी पी रहे हैं। तो उस कुम्हार ने अपने मित्र से कहा, ये मित्र, वो जो घड़े में सब लोग पानी पी रहे हैं, जानते हो उस घड़े को मैंने बनाया है। तो उसके मित्र ने कहा कि आज मैं ही मिला हूं मूर्ख बनाने के लिए। क्या तुम तो चिलम बनाते हो, रोज चिलम बनाते हो, चिलम बेचते हो, तुम घड़े कब बना दिए? झूठ मत बोल। उसने कहा, नहीं भाई, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। मेरे बंधुओं, हम लोग छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लाइज नीड मेंटेनेंस, लाइज नीड मेंटेनेंस, बट ट्रूथ नॉट। बट ट्रूथ हमेशा झूठ मेंटेनेंस खोजता है। एक झूठ बोलो, उसको याद रखना पड़ेगा कि हमने ये बोला है, और उसके लिए 50 झूठ बोलना पड़ेगा कि उसको मैनेज कैसे करोगे। लेकिन सच बोलना है, एक बार बोलो, भूलो, फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वी कैनॉट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। वी कैनॉट चेंज द ट्रूथ, हम ट्रूथ को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया तो ट्रूथ तुमको जरूर बदल देगा। तो इसलिए सत्य को स्वीकार करो। तो कुमार ने कहा, नहीं भाई, तू मेरी विश्वास कर, एक घड़े को मैंने ही बनाया है। और जानते हो, हम जो मरवाड़ी लोग हैं, अगर हम झूठ भी बोलते हैं तो कहते हैं थारी कसम। हम लोग बड़े चालाक हैं, हम कसम भी दूसरे की खाते हैं। सर भी उसी का, झूठ भी उसी का, परेशानी भी उसी का, श्राप भी उसी का। अच्छी बात बताओ, अपने में से कोई कहता है कि मेरे सर की कसम? सब क्या कहते हैं? थारी कसम। मैं सही बोल रहा हूँ। तो मेरे बंधु, हम अगर कुछ गड़बड़ भी बोल रहे हैं तो सर भी दूसरे का होता है, अपना सर भी नहीं होता। तो मेरे बंधुओं, कुमार ने कहा, मेरी विश्वास कर भाई, मेरी विश्वास करो कि मैंने ही बनाया है इस घड़े को। तो उसने कहा, तुम कैसे घड़ा बना दिए? तुम तो चिलम बनाते थे। तो उसने कहा, जानते हो, मैं मट्टी तो साना चिलम बनाने के लिए, और मेरे मन में भी था कि चिलम बनाऊं, लेकिन तब तक मेरे से सोच आया कि ये चिलम रोज जलता है और दूसरे को जलाता है, मैं घड़ा बना दूं। मेरे विचार बदले और मैं उस मट्टी को घड़ा बना दिया। घड़ा बनाकर पकाया और कोई आकर के इस मंदिर में रख गया। तो मेरे सोच और विचार बदले में इसे घड़ा बना दिया। जैसे ही वो बोला, वो घड़ा कह उठा, अरे मेरे भाई, तेरे सोच और विचार बदले, मेरे तो संसार बदल गए।
तुम्हारे सोच और विचार बदले, मेरे तो संसार बदल गए। मैं खुद पहले जला करता था, औरों को जलाया करता था, अब मैं खुद शीतल होता हूँ, औरों को भी शीतल करता हूँ, औरों को भी शीतल करता हूँ। तो मेरे बंधुओं, अपनी सोच और विचार को जैसे बदलोगे, ये संसार बदल जाएगा। और जानते हो, कहते हैं एक सुधरे, एक से परिवार सुधरेगा, परिवार से समाज सुधरेगा, समाज से राष्ट्र सुधरेगा। शुरुआत तो हो, एक फूल तो खिले इस बगिया में। परमात्मा कितना दयालु है, कितना दयालु है, रोज जन्म दे रहा है, मनुष्य को बना रहा है, इस आशा में इसमें से कोई महावीर निकले, इसमें से कोई बुद्ध निकले, इसमें से कोई विवेकानंद निकले, इसमें से कोई रामकृष्ण परमहंस निकले, इसमें से कोई ऐसे महान, इसमें से कोई जीसस निकले, इसमें से कोई गुरु नानक, नानक निकले, इसमें से कोई गुरु गोविंद सिंह निकले। इस आशा में रोज बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, और कोई नहीं निकल रहा है, तब भी तो मिटा नहीं रहा है, वो बनाते ही जा रहा है। इस आशा में मेरे बंधुओं, उस दयालु से तुम कुछ मांगने मत जाना, पहले उससे धन्यवाद देने जाना, उसको थैंक्स बोलना। और जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, तब तक क्या होगा? अंधा लंगड़ा हो जाएगा और लंगड़ा अंधा बन जाएगा। तो अपने विचार को सुंदर बनाना, उस दयालु, उस करुणामय परमात्मा को रोज कृतज्ञता ज्ञापित करना, रोज ग्रेटिट्यूड ज्ञापित करना, तो उस परमात्मा को रोज धन्यवाद देना और कहना, प्रभु जो आपने दिया है उसके लिए सब कोटि नमन, कृतज्ञता और अपनी कृपा बनाए रखना। कारण कि देने वाले ने तो बहुत दिया है, अगर अपने आंचल ही न समाये तो क्या करे। बहुत बार हम उसे नहीं रख पाते हैं, हम उसे नहीं उसको स्वीकार कर पाते हैं, उसको होल्ड कर पाते हैं, कारण कि देने वाला बड़ा देता है और हम छोटे विचार लेकर बैठे रहते हैं। नहीं, अपने विचार को भी बड़ा करो, अपने विचार को भी सुंदर करो। मेरे बंधुओं, वीकडे है और समय भी हो रहा है, 9:15 हो गया, 9:15 हो गया। तो इस सभा को समापन की तरफ भी हम लोग लेकर चलें। आज श्रीमती आसिमा शाह और सुनील शाह जी के इस गृह स्थान पर, इस महल में, सुनील जी ने महल बनाया है इसको। तो इस महल में हम सब इकट्ठा हुए, धर्म चर्चा हुई। सुनील और आसिमा आपके अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। कारण कि हम अच्छा मित्र उसे कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा करे, हमेशा अच्छा सोचे। एक बात बताओ, अगर सुनील आज वाइन की पार्टी दिया होता, शराब की पार्टी दिया होता और बुलाया होता, तो और भी लोग आते, और बड़े बड़े भी लोग आते। लेकिन एक बात बताओ, उस शराब को पीकर, उस नॉनवेज को खाकर आपका सोल नीचे गिरता कि ऊपर उठता? नीचे गिरता, ऑफ कोर्स नीचे गिरता। सोल आपका वीक होता, कमजोर होता। तो सुनील जी और आसिमा ने वाइन का पार्टी देकर नहीं बुलाया, डिवाइन का पार्टी देकर बुलाया, डिवाइन का पार्टी देकर बुलाया। और कहते हैं, जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है वाइन में, जो नशा डिवाइन में वो कहाँ है। ए वाइन की नशा तो घंटे 2 घंटे में उतर जाए, लेकिन डिवाइन की नशा चढ़ गई महावीर पर, चढ़ गई बुद्ध पर, चढ़ गई मीरा पर, चढ़ गई चंदनबाला पर, चढ़ गई त्रिशला पर, चढ़ गई पद्मावती पर, चढ़ गई भैरव पर, चढ़ गई हनुमान पर। और एक बार चढ़ गई सो चढ़ गई, फिर कहाँ उतरी कभी, कहाँ उतरी कभी। मेरे बंधुओं, जीवन अमर हो गया, संसार जाता रहा, लेकिन जो चढ़ गई वो चढ़ गई, सबरी पर चढ़ गई, अंतिम क्षण तक चढ़ी रही, जीवन जीवनांत तक चढ़ी रही, अमर हो गई। तो आप अच्छे मित्र को पाए हो। और मित्र जो है सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। या तो आप सूर्य कहो
या मित्र कहो, एक ही होता है, एक ही अर्थ है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हो तो कहते हो ना, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, खगाय नमः, हिरण्यकश्याय नमः, और उसी में कहते हो मित्राय नमः। तो सूर्य के जो 12 नाम होते हैं, उस 12 नाम में मित्र भी उसका एक नाम है। तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए। हमारा जो मित्र है वो सूर्य के जैसा होना चाहिए। सूर्य क्या करता है? आपको एनर्जी देता है, और अनकंडीशनल एनर्जी देता है। सूर्य आपको एनर्जी देके आपसे पूछता है कि आप मुझे कुछ दीजिए, नहीं, अनकंडीशनल एनर्जी देता है। कहते हैं कि लीव, गिव ऑल, नन फॉर, गिव ऑल, नन फॉर। वो सबको देता है, लेकिन किसी आशा में नहीं। सूर्य आपको प्रकाश देता है, अंधकार को मिटाता है, आपसे कोई आशा रखता है? नहीं, अनकंडीशनल लाइट देता है, प्रकाश। जो सूर्य को जल दे उसको भी प्रकाश देता है, जो नहीं दे उसको भी देता है, जो उसकी तरफ देखे नहीं उसको भी देता है, इसलिए कि उसका यह स्वभाव है कि वो प्रकाश देगा। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं कि आप अपनी भी स्वभाव इतना सुंदर बनाना। देख लो, अगर फूल के पास जाओगे तो हमें खुशबू मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। कांटों के पास जाओगे तो कष्ट मिलेगा, कांटे हाथों में लगेंगे। तो एक बात देख लेना, तुम किसी को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अपने को इतना अच्छा बना लेना कि दुनिया अगर तेरे बगल से गुजरे, संसार अगर कोई भी तेरे बगल से गुजरे, तो वो तुम्हारी अच्छाई से लाभान्वित हो जाए, वो तेरे अच्छाई से लाभान्वित हो जाए। कारण कि सूरज प्रकाश देगा, वो देगा ही, वो रोक नहीं सकता है अपने को। बादल होगी तो बारिश होगी, इसलिए को रोक भी नहीं सकता है, कारण उसकी वो स्वभाव है, उसका वो नेचर है, वही देगा। बर्फ के पास जाओगे तो ठंडी लगेगी, अग्नि के पास जाओगे तो गर्मी लगेगी, ये उसकी स्वभाव है, वो बदल नहीं सकता है। तो तुम्हारी भी स्वभाव अगर अच्छी हो गई तो बिना कुछ दिए संसार लाभान्वित हो जाएगा, संसार अच्छा हो जाएगा। तो सूरज हमें प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। सूरज हमें यह भी दिखाता है कि दुनिया एक माया है, दुनिया एक माया है। एक ऐसे सूरज दिखाता है। तो देखो, रोज तुम देखते हो कि सूर्योदय किधर से होता है? सन राइजेज इन द ईस्ट। दोपहर में किधर आता है? दक्षिण की तरफ ऊपर। और इवनिंग में किधर जाता है? सेट्स इन द वेस्ट। पूरब में उगा, दक्षिण में आया और पश्चिम में जाकर डूब गया। रोज तेरी आंखें देख रही है कि सूरज पूरब से चला, दक्षिण में आया, ऊपर आया और पश्चिम में जाकर डूब गया। रोज तेरी आंखें देख रही है। तुम कहते हो ना कि कान गलत होता है, आंखें सही होती है, लेकिन टिल टुडे व्हाट साइंस सेज, अभी तक विज्ञान क्या कहता है कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, घूम रही है, घूमती है। लेकिन हमारी आंखें क्या देख रही है? कि सूरज घूम रहा है। ए मेरे बंधुओं, इन्हीं आंखों पर भरोसा, सुबह से शाम तक झूठी ही तो देख रही, सुबह से शाम तक तेरी आंखें वह देख रही है जो नहीं हो रहा है, झूठी देख रही है। इल्यूजन, दैट्स कॉल्ड द इल्यूजन। इसी को हम माया कहते हैं। माया का अर्थ ये नहीं कि वो नहीं होता है, माया का अर्थ ये होता है कि वो होता है लेकिन दिखता वैसे नहीं है जैसे होता है। वो होता अलग है और दिखता अलग है। इन्हीं आंखों पर इतनी भरोसा कि कहते हैं कि आंखें सही देखती है, सुबह से शाम तक तेरी आंखें धोखा ही तो खा रही, झूठी ही तो देख रही। घूमती है धरती और दिखता है सूरज। तो मेरे बंधुओं, सूरज हमें यह बताता है कि दुनिया एक माया है। सूरज हमें यह भी, रोज सूर्यास्त होता है और उससे सुंदर सूर्योदय होता है रोज। तो सूरज ये बताता है कम बैक वेल, स्प्रिंग जंपिंग, कम बैक वेल। एक बार कोई तकलीफ हुआ है, हिम्मत मत तोड़ देना, मत तोड़ना हिम्मत, हिम्मत रखना, फिर उससे बड़ा बनकर आना, फिर बड़ा बनकर उभरना। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुख में, तकलीफ में जो टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा निखर गया वो मंदिर का शंकर। मंदिर का शंकर। कैसी भी दुख आए, कैसी भी तकलीफ आए, तुम टूटना मत, टूटना मत। ये जीवन में आएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में
कि जिसके जीवन में कभी दुख ना आया, कभी दुख ना आया। और अगर किसी को कभी दुख ना आया हो तो मुर्दा है। मरे हुए आदमी को कोई दुख नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही रह जाए। तो अगर तुम जिंदा हो तो जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख के समय आएगा, लेकिन तुम टूटना मत, बिखरना मत उस दुख में। विश्वास रखना खुद पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखना। एक दिन तुम निखर के मंदिर के शंकर बन जाओगे, और जो उसमें टूट जाएगा वो रोड का कंकड़ बन जाएगा। तो तुम अपने बुरे समय में कभी मत बिखरना, कभी मत घबराना, अपने पर विश्वास रखना, परमात्मा पर विश्वास रखना, वो निश्चित ही तुम्हें उससे बाहर निकालेगा। तो सूर्य बताता है कि जीवन में रोज सूर्यास्त, उससे सुंदर रोज सूर्योदय। तो सूर्य ये सारी चीजें हमें देता है। तो हमारा मित्र सूर्य के जैसा होना चाहिए। तो आप भी अच्छे मित्र पाए हो सूर्य के जैसा। श्री सुनील साहब और श्रीमती आसिमा साहब, एक बार जोरदार तालियों द्वारा आप अपने मित्र को साधुवाद दें। उन्होंने आपको बुलाया इस डिवाइन के लिए, डिवाइन कार्य के लिए, जिससे आपका सोल स्ट्रांग हो, आपका सोल मजबूत हो, आपका सोल स्पिरिचुअल हो, आपका सोल जो हो डिवाइन पावर हो। तो बहुत बहुत साधुवाद। और सिर्फ उसके लिए भी नहीं, अच्छे से भोजन भी करवाया। मैं जब माता को बुलाया था भोजन कराने के लिए, तो जब उनको विदा कर रहा था तो मैं देखा सब लोग भोजन कर रहे थे, सब भोजन कर रहे थे। भार्गव जी यहीं बैठ के भोजन कर रहे थे, उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, सब भोजन कर रहा था। 2 बच्चे वहाँ स्विमिंग पूल पर टहल रहे थे, भोजन कर रहे थे खड़े होकर के। तो उस समय माँ को छोड़ रहा था, जाकर के विदा कर रहा था। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में भी अच्छे मित्र को रखना, बुरे मित्र मत बनाना। अगर बुरा मित्र हुआ तो तेरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, बर्बाद कर सकता है। अच्छा मित्र हुआ तो तेरे जीवन को सुंदर बना सकता है। तो मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से होनी चाहिए। मित्र अच्छे लोगों को बनाना हमेशा। और जीवन में एक चीज हमेशा तय करना कि तुम रिश्तों में कभी रिएक्ट नहीं करोगे। डू नॉट रिएक्ट इन रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। क्योंकि हम रिश्तों में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, छोटी चीजें बड़ी हो जाती है, फिर आर्गू होने लगता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर झगड़ा का रूप ले लेता है, फिर बिना काम का वो सारी चीजें होती है जिसकी जरूरत नहीं है। और शांत रहने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुस्सा करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मुंह चेहरा लाल हो जाएगा, तमतमा जाएगा। शुगर को इनवाइट करोगे कि आ जाओ बीमारी जल्दी आओ। ये सारी चीजें, उल्टी पुल्टी चीजें गुस्से में होता है। लेकिन अच्छी चीजें, शांत रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, तुम ऐसे भी बैठ जाओ, शांत हो जाओगे। तो मेरे बंधुओं, जब भी गुस्सा करने की बारी आए, आराम से बैठ जाना, अपने आप को शांत करना और कहना थोड़ी देर के बाद गुस्सा करूंगा। कहते हैं अच्छी चीजें हो तो कहो, कल करो सो आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। अगर बुरी चीजें हो तो कहना आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़ी है बरसों। इतनी जल्दी भी अगर गुस्सा ही कर रहा है तो इतनी जल्दी क्या है, बरसों पड़ी है, देखेंगे कल करेंगे। तो अपने जीवन में एक चीज को तय करना कि अपने गुस्सा को खत्म करो। तुमने देश छोड़ दिया, अपना समाज छोड़ दिया, अपने घर छोड़ दिया, हजारों हजारों किलोमीटर दूर आ गए, अपनी समाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन गुस्से क्यों नहीं छोड़ा? सही बात है। मैं कहता हूं अगर वो नहीं छोड़ते तब भी चलता, लेकिन गुस्से तो छोड़ देते तो अच्छा होता। उसको क्यों लेकर आ गए हजारों किलोमीटर दूर? क्यों? मैं एक बात कहता हूं, यही विसर्जन कर दो, यहीं से छोड़ करके जाओ। गुस्से से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, दुनिया में किसी को फायदा नहीं हुआ है, गुस्से से कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है, शांति से ही हर काम हुआ है।
तो मैं आप सबसे एक बात कहता हूं कि तुम गुस्सा भी किस पर करते हो? 7.3 बिलियन पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड में, संसार का, और 7.3 बिलियन में से एक पत्नी चुन करके पति को गिफ्ट देता है भगवान, और एक पुरुष को चुन करके पति के रूप में गिफ्ट देता है गॉड। एक बात बताओ, 7.3 बिलियन में से परमात्मा ने चुनकर तुम्हें एक दूसरे को गिफ्ट दिया है गुस्सा करने के लिए? बहुत सुंदर। जरा सोच। और abusing to gift means abusing to giver. Giver. Abusing to gift means abusing to Giver. giver. अगर आप कोई गिफ्ट लेकर जा रहे हो किसी को देने के लिए और बोले बेकार है फेंक दे, तो तुम्हें कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कि वो सोचोगे इसने गिफ्ट नहीं फेंका, मुझे फेंक दिया। तो ये मेरे बच्चों, परमात्मा ने भी तुम्हें गिफ्ट दिया है। तो और 7.3 बिलियन में से, इतने बड़े संसार में से अगर उसको भी तुम डांटोगे तो परमात्मा भी तो सोचता होगा ये मुझे डांट रहा है, लेकिन उसने गिफ्ट दिया। असंख्य आत्माएं हैं, उसमें से 2-3 आत्माओं को तेरे बच्चों के रूप में दे देता है, बच्चों के रूप में दे देता है। एक बेटी दे देगा, 2 बेटी दे देगा, एक बेटा दे देगा, इस असंख्य आत्माओं में से। और फिर भी हम गुस्सा करते हैं उस पर। एक्सेप्ट विथ रेस्पेक्ट। भगवान के दिए हुए चीजों को एक्सेप्ट करो रिस्पेक्ट के साथ, एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकार करो प्रेम के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ। कारण कि करुणा, दया, प्रेम तेरा स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव है। अगर भगवान को तुमसे गुस्सा करवाना होता तो नाग बना देते, सर्प बना देते, शेर बना देते, बाघ बना देते, खूंखार जानवर बना देते। क्यों नहीं बनाया? तेरी आत्मा को मनुष्य के शरीर में डाला, और मनुष्य का शरीर इस संसार का सबसे उत्तम शरीर है। मनुष्य देखो, पानी में चलने वाला भी जहाज बना दिया, हवा में उड़ने वाला भी जहाज बना दिया। दूसरा कोई जानवर बनाया क्या? मोबाइल बना दिया, टेलीफोन बना दिया, घर बना दिया, तरह तरह की चीजें बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च कर दिया, बल्ब बना दिया। किसी और जानवर ने बनाया? कारण कि वो अपने नेचर में ही रहेगा, अपने प्रकृति में रहेगा। मनुष्य को ऊपर उठने की भी कला पता है, वो ऊपर उठ सकता है, और चीजें भी कर सकता है। तो मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सार्थक करना, अपने संस्कारों को सुंदर करना। कारण कि तुम गुस्सा करते हो, वहीं तेरे बच्चे देखेंगे और बच्चे भी वही करने लगेंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया, तो उस मित्र के एक लड़का था और एक लड़की, दोनों आपस में झगड़ रहे थे। लड़का गाली दे रहा था अपनी बहन को, बहन गाली दे रही थी अपने भाई को, और मारपीट भी कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो उसके मित्र ने कहा कि जो आया था, बोले तेरे बच्चों क्यों लड़ रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ, शांति से रहने दो, इतने झगड़ा मत करो। थोड़े से चुप हो गए, फिर से शुरू कर दिए। फिर उसने कहा भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, थोड़ा शांत तो हो जाओ। फिर शुरू कर दिए। तो उसने अपने मित्र को आवाज दी, अरे भाई देख तेरे बच्चे लड़ रहे हैं, ये चुप नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अंकल आप मत बोलिए पापा को, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम पापा और मम्मी का नकल कर रहे हैं। पापा मम्मी खेल मम्मी का नकल कर रहे हैं, मेरी बहन मम्मी का रोल निभा रही है, मैं पापा का रोल निभा रहा हूं। तो जैसे तुम करोगे, तेरे बच्चे, तेरी ये रक्स हैं, वो भी वैसे ही करेंगे। अगर तुम प्रेम करते हो तो भी प्रेम करेंगे, तुम करुणा रखते हो तो भी करुणा रखते हैं, तुम गुस्सा रखते हो तो भी गुस्सा रखेंगे। और जानते हो आजकल के बच्चे और मॉडर्न हो रहे हैं, अगर तुम 1% गुस्सा करोगे तो 10% करेगा, इसलिए तुमसे आगे है वो। तो अपने इन चीजों को हटाना, अहंकार को, क्रोध को, ईर्ष्या को, मद को, इन सब चीजों को धीरे 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 खत्म करना। और महावीर यही तो कह रहे हैं कि मिटाओ इन चीजों को, एक एक को जाने दो, एक एक को छोड़ो, छूटने दो अपने से, कुछ भी नहीं रह पाए। क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, मोह छोड़ो, भोग छोड़ो, इन सारी चीजों को छूटने दो और अपने को ऊपर उठाते जाओ। महावीर के जीवन की एक घटना है कि एक व्यक्ति, महावीर एक कमरे में बैठे हैं और उसमें अंधेरा छाया हुआ है।
एक व्यक्ति तलवार लेकर के उस अंधेरे से लड़ रहा है कि मैं प्रकाश ला दूंगा। 4 घंटा लगातार तलवार चलाता है, हाँफने लगता है और हाँफ करके बैठ जाता है। महावीर पूछते हैं कि तुम इतने थक क्यों गए हो? तो कहता है कि अंधेरा से बहुत लड़ा हूं मैं, लेकिन अंधेरा भागा ही नहीं। तो महावीर कहते हैं ज्ञान का दीप तो जला लो, एक दीप जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने अंदर एक होश का दीप जला दो, एक क्रोध भाग जाएगा, ये अहंकार भाग जाएगा। बस एक दीप जला दो। एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो रोज ध्यान करते हैं? हाथ उठाएंगे। रोज मेडिटेशन करते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो रोज प्राणायाम और योग करते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग हैं जो रोज गुस्सा करते हैं? हाथ उठाएंगे। Yes or no? अब देखो, दो ही हो सकता है, यस या नो, बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि देखो भाई, मैं राम नहीं हूँ लेकिन मैं रावण भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है। जो राम नहीं होगा रावण जरूर होगा। वो अपने को रावण कहने से बच रहा है। ये तो हम दो ही है, या तो राम होगा या रावण होगा। दूसरा तीसरा कहाँ कोई चीज है? मिडिल में कुछ है ही नहीं है। या तो तुम अच्छे होगे, नहीं तो बुरे होगे, या तो शांतमय होगे या क्रोधमय होगे। तीसरा कहाँ आता है? हम अपने को बचाने के लिए कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। लेकिन नहीं, तुम अपने क्रोध को त्यागना। अपने आप को जितने बढ़ते हो, कितने लोग यहाँ जैन समाज से हैं? हाथ उठाएंगे। गुड। कितने लोग रोज सामायिक करते हैं? हाथ उठाएंगे। एक ही आदमी, ये भी आधी उठा रही है, आधी रख रही है नीचे। कितनी सामायिक रोज करती है? 2। अब इस उम्र में 84 साल की हो गई, 2 ही करती है। अब तो 4-5 किया। देख, अब तुम्हें क्या काम है? सब बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, परपोते को परपोती को देख लिया। अब तो रोज 4-4 सामायिक कर। आज मुस्लिम लोग देख 5 बार नमाज पढ़ते हैं। 5 बार नमाज पढ़ते हैं। वो कहीं भी रहेंगे वही लग जाएंगे, कपड़ा बिछा देंगे और वही लग जाएंगे। और हम लोग उनसे कम से कम सीखना चाहिए। हमारी उम्र हो गई, अब कम से कम 5 बार तो हम भी सामायिक कर लें। अगर कोई सनातन धर्म का है, उसको सामायिक का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो बैठ कर कोई पाठ कर ले, कोई पाठ कर ले। दिन में कम से कम 2 बार तो कर ही लो। सुबह कर लो और शाम कर लो। शाम में संध्या गायत्री कर लो। यह जीवन में अपनाओ। तुम्हें देखकर तेरा बेटा भी करेगा और बेटा को देखकर पोता भी करेगा। Those pray together, they stay together. Those pray together, they stay together. जो साथ में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो साथ में रहते भी हैं। तो चलो, बहुत बहुत साधुवाद। आज श्रीमती आसिमा और श्री सुनील शाह ने हम सबको एकत्रित किया, सबको भोजन कराया और सबको आध्यात्मिक अमृत भी पिलवाया। फिर से हम उनको साधुवाद देते हैं अपने तालियों के द्वारा। और अपने हृदय पर, अपने हार्ट पर, अपने जिम्ना हाथ को, राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखते हैं। और बोलेंगे ओम ह्रीं हुं यं शः भुवा भू स्वः अंग ह्रीं ओम अंग अह नमो अरिहंतानं श्रीं शं शः नमो सिद्धानं आंग ह्रीं अंग अह नमो आर्यानं अंग हंग जुंग शः नमो वज्रयानं लंग हंग ह्रीं फट नमो लोये सवसाहुनं श्वः
दिव्यम कृतम राज्यम भोज्यम स्वः। अब आपको जो भी प्रार्थना करना हो, ईश्वर से जो भी मांगना चाहते हैं, whatever you like to ask from God, whatever you like to seek from God, you seek. आप प्रार्थना कर लें, जो भी आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं ईश्वर से मन में स्मरण कर लें। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो परमात्मा से मांगोगे तो किसी से नहीं कहेगा, खुशी से दे देगा। औरों से कहोगे तो हो सकता है वो दे भी नहीं और तुम्हारी मजाक भी उड़वा दे। हाँ, बोलो यंग श हुम अरहम दिव्यम अंग पंग यंग श पारसनाथाय नमः ओम गंग गणपते नमः नमो भगवते वासुदेवाय दिव्यः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य हो, सफल हो। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है। हे ईश्वर, यह जीवन सार्थक हो, सफल हो। हे परमात्मा, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा मेरा पूर्ण हो, आत्म मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, मोक्ष को उपलब्ध हो। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, परिवार में सुख शांति हो, जीवन उन्नत हो, श्री और समृद्धि की सानिध्य हमेशा प्राप्त हो। ओम भूव भू स्वः ओम हन हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु किसी को कोई स्वास्थ्य में अगर तकलीफ हो, हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो मन में याद कर लेंगे, और नहीं है तो ये करेंगे मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं। आरोग्य रूपेण संस्थिता ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे यं हुं ह्रूं स्वः दिव्यम इदम चत्तारि मंगलम सर्वदः पूज्यः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु और किसी के भी व्यापार में कोई तकलीफ हो तो मन में स्मरण कर लेंगे, या व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो भी अपने मन में कर लेंगे, अच्छा करना चाहते हैं वो भी अपने मन में स्मरण कर लेंगे। यं श्वः पद्मावती आदिलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी गजालक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी धनालक्ष्मी संतानालक्ष्मी ऐश्वर्यालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वः इदं लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अब किसी पर कोई केस हुआ हो या वो कहीं केस किया हो, इस तरह का कोई भी परेशानी हो तो मन में स्मरण कर लो और मन में करेंगे कि मेरा विजय हो। यं हुं श्व यं हुं चले स्थले निवासनी
विनाशिनी प्रचंड मुंडवादनम प्रचंड मुंडवादनम दिव्य वस्त्र वक्षणम दिव्य वस्त्र वक्षणम विसार दिव्य सर्वदम विचार दिव्य सर्वदम यंग हंग लंग है यंग हंग लंग है शर्व शर्व पूज्यनम सर्व सर्व पूज्यनम दिव्य वस्त्र पूज्यनम दिव्य वस्त्र पूज्यनम स्वः स्वाहा स्वः स्वाहा मातृरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता बोलो नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम ओम स्वः स्वाहा स्वः स्वाहा O God, O God, lead me higher, lead me higher, lead me deeper, lead me deeper, lead me beyond, lead me beyond, lead me to you. lead me to you. मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर धारण किए हुए हूँ. ये शरीर धारण किए हुए हूँ. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a happy soul. I am a happy soul. I am a pure soul. I am a pure soul. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am a healthy soul. I am a healthy soul. I am an angel. I am an angel. I am an angel. I am an angel. I am a Masiha. I am a Messiah. I am a Masiha. I am a Messiah. I am a healthy soul. I am a healthy soul. I am a divine soul. I am a divine soul. I am a happy soul. I am a happy soul. हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरी सोल को, मेरी सोल मेरी को, आत्मा को मेरी आत्मा को पावरफुल बनाना. powerful बनाना. रोग, रोग, दुख, दुख, कष्ट कष्ट सबसे ऊपर उठें. सबसे ऊपर उठे. मेरी आत्मा मेरी आत्मा पावरफुल हो, powerful हो, हेल्दी हो, healthy हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, प्योर हो, pure हो, पवित्र हो. पवित्र हो. 3 बार अपने हाथों को अपने हृदय पर करेंगे और एक इंडेक्स फिंगर लेंगे, इससे अपने ललाट पर ओम लिख देंगे. कितने लोग हैं जो रोज ओम लिखते हैं? वाह, गुड. एक बार इन सब के लिए ताली बजाएं. ब्यूटीफुल. जितने लोग नहीं लिखते हैं वो भी लिखना शुरू करें. बहुत फायदा होगा इससे. कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी भी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, एक्सीडेंट से बचेंगे, गुस्सा कम आएगा, क्रोध खत्म होगा और यादाश्त बढ़ेगी. भूलने की आदत जो नहीं होगी वो खत्म हो जाएगी और यादाश्त बढ़ेगी और आपका डिसीजन सही होगा. बहुत बार हम अपने जीवन में 100 डिसीजन अच्छे लेते हैं और एक डिसीजन गलत हो जाता है, परेशान हो जाता है. मैं 3 साल पहले भार्गव जी को कहा था कि जो व्यापार कर रहे हो कंट्रोल अपने हाथ में रखना. जी. कंट्रोल लूज हुआ और गलती हो गई. जी. कारण कि गलत करने वाला तैयार रहता है कि कब हमें मौका मिले कि मैं गलत कर जाऊं. और हमेशा अच्छे लोग गलत करने वाले से ठगे जाते हैं. अच्छे लोग परेशान होते हैं. हाँ, सबका जीवन सुंदर हो. एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो कि तुम भी अच्छे काम करने के लिए आए. बहुत सुंदर. सबको बहुत बहुत साधुवाद. इतने प्रेम और पेशेंस से आपने सुना और अभी तक बैठे. बहुत बहुत साधुवाद. और फिर से श्रीमान सुनील जी को और श्रीमती आसिमा शाह को मैं फिर से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया और आशा करता हूँ कि उनके जीवन में ऐसे कार्य और भी होते जाएंगे. बहुत बहुत साधुवाद. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. राकेश, पहली बार में So, Jai Gurudev. Now, very simple talk, but extremely, extremely powerful.
One time, Gurudev said that as a part of Guru Dakshina, I don't want your money. I don't want any material thing from you. Just adopt one thing in your life. That's all I have to say. Whether it's, not react but respond, or you speak the truth, whatever you adopt, just adopt one thing, and you'll see good things happen to you in your life. Second request I have is that those who have not met Gurudev last 3 or 4 days, please come first, who have not met Gurudev. Because time is limited, we want to make sure that new people who have never met Gurudev come in the front to take Gurudev's blessing. We have to be patient, we need to be respectful, and need to give opportunity to those who never met Gurudev. Ashima, you know best, so please tell us. Yeah, it's an humble request to everyone. People who are having or meeting Guruji first time today, please come forward. And also people who haven't taken the prasad, I request all of you, please don't leave without having a prasad. And all our Guru Bhakt, we are meeting Guruji for so many days and so many years. Please let you people, to get Ashirwad. So I was talking to Rakesh Bhaiya and Jai Gurudev. Everyone had amazing darshan of Pujya Gurudev. I was talking to Rakesh Bhaiya. मैं क्या कह रही थी कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा बंद कर दिया है, सब लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और वो नहीं बैठ रहा है। तो चलिए 3 दिन से हमको इतना लाभ मिल रहा है, तो एक तो सब लोग आरती ले लीजिए। एंड मालती भाभी सॉरी, वो उस समय गुरुदेव का एकदम आने का हो गया, ध्यान नहीं रहता है, तो जस्ट वांटेड टू हाईलाइट हिम। सो next time we'll definitely do Shankh-Dhwani, or maybe I will make you co-host so you can do it by yourself. And चलिए हम सब इतने bliss और joy में हैं, we stay in that bliss हमेशा के लिए। इतना गुरु ने दे दिया हमको कि it's amazing, तो इसके साथ ही इन खुशियों के पलों के साथ, इन divine पलों के साथ, इन unforgettable moments के साथ हम आज के सत्संग को विराम देते हैं। Everyone have a wonderful, blessed, blissful, joyful, amazing day and evening. God bless. Namaskar, pranam, and Jai Gurudev. I'll unmute everyone. So जयकारा गुरुदेव का बहुत बड़ा जयकारा करेंगे और उसके साथ ही हम सत्संग को विराम देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको संभाल लेना मेरे। जय गुरुदेव। We'll conclude the meeting now. थैंक यू सो मच प्रभा जी। Thank you. Thank Thank you for you. joining. Thank you, Rakesh. Thank you, Babaji. Jai for Gurudev, all the everyone. arrangements. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Prabhu, and thank you, Rakesh bhai. Thank you, Ashima ji, for hosting. Thank you so much. Thank you. Jai Gurudev. सब लोग आरती ले लीजिए। शारदा जी भटारा आरती दे रही है। उनको हाईलाइट कर दें, उनको हाईलाइट कर दें प्लीज। मैं हाईलाइट कर देती हूँ उनको 1 मिनट के लिए। हाँ, जय गुरुदेव प्रभा जी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। हाँ आरती। सब लोग ले लीजिए। थैंक यू जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब लोग ओम लिख लें ललाट पर।